اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التحامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابی طالب علیہ السلام جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ ہم لوگوں کو اس نازک ترین زمانے میں ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین گرامی ضرور آمین کہیے گا اگر آپ کی طبیعتوں پہ بار نہ ہو تو۔ بار الہ تجھے واسطہ آج کی رات کا ہم لوگوں کو اس نازک ترین دور میں کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء عشق جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، آخری صف تک موالی جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہر بندہ آمین کہے اور صلوات میں شریک ہو جائے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ تکلیف نہ سمجھیں تو ایسے جلدی سے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھولیے اور ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ ماشاءاللہ مجمع کافی ہے اور صلوات کی آواز ضرورت سے زیادہ دھیمی ہے، تکلیف نہ سمجھیں تو ایک جشن والی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ پیچھے والوں کی بھی اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ آپ تمام موالیان کا قدم قدم چل کے آیا، میری مخدومہ اپنی بارگاہ عظمت و نام قبول و منظور فرمائے۔ صورتحال آپ تمام موالیان دیکھ سکتے ہیں، آپ میری دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کی دیکھ سکتا ہوں۔ میرے خیال سے آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں اور میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں، جو ہمیں دیکھنے سے لگ رہا ہے۔ جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں بلکہ مجھ سے پہلے ہی پڑھ کے جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان اچھا پڑھنے والوں کی فہرست میں حاضری کے طور پہ چھوٹا سا نام بالکل اسی طریقے سے لکھوانا ہے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا۔ مصر کا بازار سجا ہوا تھا اور خریداران حضرت یوسف کی قطار میں ایک ضعیفہ، ایک بڑھیا آئی تھی اور اپنا نام درج کروا کر چلی گئی تھی۔ بس اسی طریقے سے مجھے بھی مختصر سے مختصر اپنا نام درج کروانا ہے، لیکن صورتحال یہاں ذرا سی مختلف ہے کیونکہ وہ مصر کا بازار تھا، یہ علی کے بیٹے کا دربار۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ ہے بھیا، موڈ ہے جشن سننے کا تو میں پڑھتا ہوں، ورنہ یا علی کرے۔ میرا آیا ہو گیا یہاں پہ، آپ سے زیادہ باخدا میں تھکا ہوں، تیسرا ہفتہ ہے میں بیماری کی زد میں ہوں۔ اگر آپ کا تھوڑا سا ارادہ ہو تو میں 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے 2-4 شعر سنیں گے اور میں آپ سوچ رہے ہوں گے اور چلا جاؤں گا۔ سامعین گرامی، پورے اسلامک کیلنڈر میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شعبان۔ بس یہ پہلا جملہ پڑھ کے چیک کرتے ہیں کہ آپ کتنا سننا چاہتے ہیں، باخدا اتنا پڑھنا ہے، بلکہ آپ کے سننے سے بھی کم پڑھنا ہے، طبیعت ہی نہیں ہے۔ واحد مہینہ ہے یہ شعبان کا مہینہ جس پورے مہینے میں میرے مولا علی کے گھر میں غم کوئی نہیں اور منکر کے صحن میں خوشی کوئی نہیں۔
بھائیو ادھر مجھے دیکھو بھائی, وہ اسکرین پہ میں ہوں, یہاں پہ بھی میں اصلی کھڑا ہوں بھائی, وہ میرا بھی عکس ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ اپنے ہاتھ کھولیے ذرا سے, آپ بھی اپنے ہاتھوں کو کھولیے. میرا بھائی جائیں, جا کے ریسٹ کریں, یہ بڑی قیمتی جگہ ہے اور 3 شعبان کی رات ہے. میرے مولا حسین آئے ہیں, اور میرے مولا حسین آ گئے ہیں. پتہ نہیں آپ کی پریشانی کیوں نہیں ختم ہو رہی. آپ صرف اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیے, میں اور آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا, صرف مسکرانا ہے میری بار. باقیوں کو داد دینی ہے, میری بار صرف مسکرانا ہے, اور فرنٹ پہ بیٹھ کے بالخصوص مسکرانا ہے. مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں ہے, اور دشمن کے صحن میں خوشی کوئی نہیں ہے. اب آخری صف تک کے موالی کے لیے میں جملہ دوبارہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی مسکراہٹیں نظر آئیں. میں 2-4 ایسے شعر پڑھ کے آپ کو سلام کروں. صرف مجھے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ چاہیے, اور مسکراہٹ بھی اس لیے مانگ رہا ہوں میرے بھائی, جس طریقے سے باخدا مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے, یا جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ یہ کالی رات ہے, باخدا مجھے اس جملے پر بھی اسی طریقے سے یقین ہے. صرف آپ کی مسکراہٹ کے لیے مانگ رہا ہوں, جس سے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے. یہ دوسری بات سنو, میں شعر کے قریب آ گیا. مجھے ہر چہرہ صرف مسکراتا ہوا نظر آئے. جو اپنے روتے سوتوں کا غم کرنے آیا وہ باہر چلا جائے. جس کے اندر کوئی خوشی ہے کہ آج مالکوں کے ہاں بڑی خوشی ہے اور نوکر کچھ مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں, وہ صرف چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے. جیسے اس خدا کے ہونے پہ یقین ہے, ویسے ہی باخدا اس جملے پہ یقین ہے. میرے بھائی یہ جو راتیں چل رہی ہیں نا میرے اداس بھائیوں, ان راتوں میں میرا اس خدا کی وحدانیت کی طرح یقین ہے کہ اس زمین پہ, اس کرۂ ارض پہ کوئی بجھتی جلتی کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی سلگتی ہوئی موم بتی سے لے کر وہ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک آج جو بھی مسکرا رہا ہے نا, وہ صرف مسکرا نہیں رہا, وہ منکر علی کا کلیجہ بھی جلا رہا ہے. پیچھے والوں کو اگر میرے مولا نے ہاتھ دیے ہیں تو تکلیف نہ سمجھیں, تو ہاتھ اٹھا کے نہ رہے حیدری. 4 مصرے آپ کو سناتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں مولا حسین پڑھنا یا مولا عباس. 10 سے 12 منٹ اپنی گھڑیوں پہ ٹائم رکھیں. زندگی باقی ملاقات جلدی آئیے, میرے مولا سلامت رکھیں. مصرع پڑھ رہا ہوں. جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے, جو آ گیا ہے بقا کی نوید. اب آپ آ گئے تو حوصلہ بڑھ گیا, اس کی کو بند کیجئے, مجھے پڑھنا ہے. جو آ گیا ہے ماحول باخدا زندگی میں پہلی بار انچولی کے اتنا تھکا ہوا دیکھ رہا ہوں اور اتنا ٹھنڈا مجمع دیکھ رہا ہوں. یہ شعر پنجاب میں تب پڑھتا ہوں جب عوام بیچ بیچ میں نیچے جائے, لیکن ابتدا میں زندگی میں پہلی بار یہ شعر, اور وہ بھی انچولی پڑھنا پڑ رہا ہے. میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا. میں مصرع پڑھوں, آپ نے یہاں دیکھنا ہے, آپ کو انشاءاللہ مصرع نقش نظر آئے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ مصرع نے کہاں کہاں کیسا کیسا اثر کیا, اور بات سمجھ تب آئے گی جب میں مصرع پڑھ کے شاید اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں گا. آپ چہرے دیکھیے, میں مصرع پڑھ رہا ہوں. جو آ گیا ہے میرے بھائیوں بڑی جلدی سے, جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے, تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے, اور جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی, قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا. تو سمجھ گیا مل کے بولو حیدر حیدر. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. اور بول سکتے سارے کھڑے ہو جائیں, میرے پاس آ جائیں, میں تم کو تھوڑا جشن سنا کے دکھاؤں. مل کے بولو حیدر حیدر. جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے, تمام حسن اسی کی خرید. آگے آتے جائیے. تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے, جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی, قسم خدا کی وہ بندہ, قسم خدا کی وہ بندہ. کوئی ہے پلان جشن سننے کا یا بس چھٹی کر رہے ہیں؟ قسم خدا کی وہ بندہ, قسم. ابرار صاحب مجھے دیکھیے, قسم خدا کی وہ بندہ. جشن میں شروع, خدا گواہ میں 10-12 منٹ میں ممبر چھوڑ دوں گا. آپ کو مولا کا واسطہ آپ ایسے سنیے کہ پتہ چلے میرے مولا کی آمد ہو رہی ہے. قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے. ڈائریکٹ 3 شعبان سے بات شروع کر رہا ہوں, نہ لگا تو 4 شعبان پہ بات کریں گے. 4 شعبان پہ بھی داد نہ ملی تو انشاءاللہ آپ اللہ کے حوالے اور میں بھی اللہ کے حوالے, آپ اپنے گھروں کو اور میں انشاءاللہ اپنی فلائٹ کے انتظار میں. قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے. کھڑے میں نے کر دیا, آپ تمام مجھے دیکھ رہے ہیں, اور باخدا میں آپ تمام کو دیکھ رہا ہوں. جن جن ہاتھوں میں موبائل ہیں وہ دوسرا ہاتھ بلند کریں. میں مانگ صرف اتنا رہا ہوں, میرا چھٹا مصرع ایک بار سن لینا. کون ہے حسین؟ کیا ہے حسین؟ زندگی میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں, یا ابھی کورنگی پڑھا یا آپ کے پاس پڑھ رہا ہوں. کچھ خیرات, وہاں تو مجمع کھڑا ہو گیا, یہاں کچھ خیرات, یہاں آلریڈی کھڑا ہے, یہاں کچھ خیرات ہوگی تو جا کے ملیر پڑھیں گے, ورنہ زندگی باقی ملاقات باقی. یا علی مدد. کون ہے حسین؟ کیا ہے حسین؟ مصرع کا وزن کیجئے گا. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں,
नबी की अर्श निगाही का आफताब हुसैन। जिंदगी में पहली बार पढ़ू मेरे भाइयों, हाथों की मछलियों को जगाना। नबी की अर्श निगाही का आफताब हुसैन, पिसर बतूल का इब्ने अबू तुराब हुसैन, खिजा की जद पे महकता हुआ गुलाब हुसैन, जमूद ज़हन पे तहरीक इनकलाब हुसैन। जिंदगी गुजर गई, शायरी सुनते सुनते मुझे बंदा बताइएगा जो हुसैनी है वो हाथ कैसे नहीं उठाता। जमूद ज़हन पे तहरीक इनकलाब हुसैन। हुसैन कौन है? मैं माफी मांग के कह रहा हूं, अबूदियत का इसे ज़ेबो ज़ैन कहते हैं और शहादतों के खुदा को हुसैन कहते हैं। शर्मा के नहीं, हाथ उठा के बोलो हैदर हैदर। मैं अगला पढ़ूंगा, फिर ऊपर आएंगे। अबूदियत का इसे ज़ेबो ज़ैन के, शहादतों के खुदा को, शहादतों के खुदा को, कहां जा रहे हैं? इधर खड़े हो। शहादतों के खुदा को अबूदियत का इसे ज़ेबो ज़ैन कहते हैं। आप जाकिरीन को सुनाते हैं, मैं आज आपको सुनाता हूं। शहादतों के खुदा को हुसैन, हुसैन। क्या परेशानी है? शहादतों के खुदा को लीजिए शेर सुनिए। जो अपने रोते सोतों का गम करने आया वो चला जाए। मैं फिर कह रहा हूं, जिसके अंदर कोई खुशी है, मेरे मौला हुसैन तशरीफ ले आयो मेरे भाइयों। अब आज की रात भी जो खुश नहीं, अल्लाह करे वो जिंदगी भर कभी खुश ना हो। और जो आज की रात खुश है, मेरे मौला उसे अपने गम के अलावा हर गम से महफूज रखे। शहादतों के खुदा। इब्राहिम साहब, मेरा कद छोटा है, मैं शेर बड़ा पढ़ रहा हूं, बल्कि ये देख, ये आसमान छोटा है, अली अब्बास अस्करी शेर बड़ा पड़ रहा है। मेरी थकावट नहीं देखनी, मेरे मिसरे का वजन करना है। माफी मांग के कह रहा हूं, हुसैन कौन है? बईद हद तखय्युल करीब रूह बशर, हुसैन ही है रसूलों के मौजज़ों का हुनर, बिनाए खिलकत कौनैन हर्फ कुन का असर, ये राजदार अजल का ये इंतहा की खबर। फिर इधर देखिएगा, ये ये इंतहा की खबर। माफी मांग के कह रहा हूं, ये सोचना भी अबस है, कहां कहां है हुसैन, जहां जहां भी खुदा है वहां वहां। जश्न आखिर में तो मैं इतनी मेहनत इसलिए करूं कि अंजाम अच्छा हो जाए। ये सोचना भी ये बस है, कहां कहां है हुसैन, जहां जहां भी खुदा है, जहां जहां भी खुदा है, जहां जहां भी खुदा है। कोई बंदा भी ये ना समझे कि मैं घर फारिग बैठा हुआ था तो मैं जश्न में आ गया। हर बंदा जश्न में आ ही नहीं सकता। आता वो है जिसे मेरे मौला बुलाते हैं। उसकी वजह यह है, हुसैन सबको कहां दस्तयाब होता है। आए हाय, हाथों का जगाओ मेरे भाइयों, का बोलोगे? अरे हुसैन, सारा जश्न जिस बंदे ने चुप करके सुन लिया, उस बंदे से लिए बात अस्करी क्या मुतालबा करे? हुसैन सबको कहां दस्तयाब होता है, कहीं बबूल के ऊपर गुलाब होता है। मुझे खुद बताओ, हुसैन सबको कहां दस्तयाब होता है, कहीं बबूल के ऊपर गुलाब होता है। माफी मांग के कह रहा हूं, बईद इश्क के बिने बू तुराब होता है, अगरचे खून जरा भी खराब होता है, अगरचे खून जरा भी, अगरचे खून। ये मेरा महल्ला है, ये जितना खड़ा है ये मेरा महल्ला है। ये महल्ला मेरे साथ बोलेगा ताकि आपको देख के ये बोले, अगरचे खून जरा भी खराब, इतना सा भी खून खराब हो तो बंदा हुसैन को नहीं मान सकता। आप लोग जो आए हैं घर जाके काम करना, अगरचे खून जरा भी खराब होता है तो माफी मांग के कह रहा हूं, पे खिराज तहारत ये काम कर लेना, अदब से माओं को जाकर सलाम कर ले। ये चल रहा है
भाई साउंड वाले आके दें नुआन करें आकर मारे अगर से खून जरा भी खराब होता है। अब आप लेट हो गए, अगले शेर में अब्बास अस्करी का वतीरा ये है कि ये शेर और ये कलाम सुनाते ही उसको है जो शेर सुनने के लिए या मौला का जिक्र सुनने के लिए मछली की तरह तड़प रहा हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि अब्बास अली अस्करी को हर मिसरे पर ऐसा खिराज चाहिए होता है जो खिराज मौला हुसैन का हक बनता है। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारा लगाए तो उसके बदले में कुछ ना कुछ मेरा देना तो बनता है। कराची का भी उधार मैंने रखा तो नहीं। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। अब नारा मैं लगाता हूँ, खुदारा नारा मैं लगाऊंगा और हर बंदा जवाब दे, मौला का वास्ता। लेकिन नारा तब लगाऊंगा पहले 6 मिसरे पढ़ूंगा, उसके बाद मैं नारा लगाऊंगा और माजरत के साथ हर बंदा वाजिब समझ के हाथ उठाए। साहिबान मिंबर तवज्जो मेरी तरफ करें। नारा लगाने से पहले मैं 6 मिसरे पढ़ रहा हूँ और दुनिया में ऐलान कर रहा हूँ, जहां के मुफलिस और नादार जल्द आ जाओ, फिजा हुई है गौहर बार जल्द आ जाओ, लगाओ देर न ज़ुनहार जल्द आ जाओ, अरे अभी खुला है ये दरबार जल्द आ जाओ, अभी खुला है, अभी खुला, हाथों को बुलंद करो, अभी खुला है ये दरबार, अभी खुला है ये दरबार, अभी खुला है ये दरबार, जल्द आ जाओ ज़माने वालों, जल्द आ जाओ। उसकी वजह ये है हर एक चादर गुर्बत सिमटने वाली है, मेरे हुसैन की खैरात बटने वाली है। इनके बोलो नारे हैदरी, हर एक चादर गुर्बत सिमटने वाली है, मेरे हुसैन की खैरात, मेरे हुसैन की खैरात, मेरे हुसैन की। बिल्कुल मैं आखिर में आ गया, मेरे बाद ये केक की बरामदगी होगी और आप तमाम में टूटेगा। मेरे मौला हमेशा आपको सलामत रखें, मेरे हुसैन की खैरात। सर जी नजर का भी एहतमाम है, मैं करवाता हूँ, मैं आप यहाँ नजर की बरामदगी होगी, यानी ये भी एक तबरुक बन गया। बस ठीक है, आप नजर किए बगैर नहीं जाइएगा और आपने जाना वैसे भी नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं सलामत रखें। लेकिन ये केक मेरे होते हुए नहीं काटना, मौला का वास्ता। मेरा पंजाब का बहुत बुरा तजुर्बा है, वहाँ पे मोमिन केक पे ऐसे टूटते हैं, कमीज भी उतार के ले जाते हैं। सलामत रखें, मेरी गुजारिश समझ आ रही है? मेरे हुसैन की खैरात बटने वाली है, मेरे हुसैन की खैरात। चेक वाली शर्ट, इतनी अच्छी शर्ट पहन के बंदा चुप अच्छा कुछ वैसे भी नहीं लगता। अगर ये शर्ट पहन के दाद नहीं देनी तो मेरा भाई उतार के मुझे दे दे। मैं मेरे हुसैन की एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देके जा रहा हूँ, बहुत बड़ा। मेरे शिया सुन्नी भाई साथ बैठे हैं, अब खुदा रहा जरा सी स्पीड को तेज करो। एक तसव्वुर दे दिया गया, एक ख्याल छोड़ दिया गया शिया सुन्नी दोनों भाइयों में कि गैरुल्लाह का तसव्वुर नमाज को बातिल करता है। दौरान नमाज गैरुल्लाह का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जो कहते हैं नमाज के दौरान गैरुल्लाह का तसव्वुर नमाज को तोड़ता है, जो भी बोला उसका शुक्रिया। अब इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। 1400 साल पहले ये फ्रंट वाला मजमा हुआ क्या? हुसैन इब्ने अली था, हुसैन इब्ने अली था, उसूल तक पहुंचा, इबादत नबवी के शुमूल तक पहुंचा, इबादत नबवी के शुमूल तक पहुंचा, ख्याल सजदाए रब के हुसूल तक पहुंचा, और सफों को चीर के पुश्ते रसूल तक पहुंचा। सफों को चीर के, एक मिनट सफों को चीर के, बहुत बड़ी बात, बहुत आराम से कर रहा हूं और इसके बाद डायरेक्ट मौला बात शुरू कर रहा हूं। सफों को चीर के पुश्ते रसूल तक पहुंचा। अब दुनिया वालों मुझे खुद बताओ, अगर तसव्वुर शाहे हिजाज बातिल है तो फिर कहो कि नबी की नमाज बातिल है।
3 शबान से जंप लेके 4 शबान पे आ रहा हूँ। मेरे मौला आपको सलामत रखे। और फिर मेरे बाद इंशाल्लाह सबसे बड़ा दुनिया का जाकिर, दुनिया का सबसे बड़ा खतीब इंशाल्लाह लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिसपे सबसे ज्यादा मजमा आता है, वो खिताब फरमाएंगे। आप तमाम सुनिएगा। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, अली का अली बेटा आ गया 10 लाख के सामने। भैया इसे जरा पीछे कीजिएगा, इसकी आवाज खराब करके ऊपर ले जाए, बेशक जूम कर ले। अली का अली बेटा आ गया 10 लाख के सामने, और 10 लाख की आंख में आंख डाली मेरे मौला अब्बास ने। मैं आपको चेक कर रहा हूँ माहौल बना मौला अब्बास वाला तो नज़मादी पढ़ूंगा, ना बना तो यहीं के एक पे छुरी फेर के अपने रास्ते, मैं आप अपने रास्ते। 10 लाख के सामने मेरे मौला गाजी ने कुमैल मुझे देखना मेरे भाई, तलवार निकाली, तलवार निकाल कर करबला की रेत पे एक लकीर खींची, लकीर खींच के मेरे मौला अब्बास ने एक तमाचा मारा। वो तमाचा, अब मुझे देखिएगा, मैं बड़ी जल्दी मिसरा बता रहा हूं और ये बताएंगे कि गाजी मौला की मवद्दत कहां कहां सीनों में धड़क रही है। लकीर खींच के अब्बास 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं, ये बात याद रखना, लकीर नहीं डाली, मैंने फैसला किया, वहां लिबादे अलग हैं, यहां लिबादे अलग, तेरे इरादे अलग हैं, मेरे इरादे अलग। लकीर खींच के बतला दिया ये गाजी ने, इमाम ज़ादे अलग है, हराम ज़ादे। बोलो यार, जो डर गया वो रहने दे। अरे जिंदगी गाजी की अमानत है, जब तक मेरे मौला ने सामने जीना ही जीना है, अली अली करना ही करना है, परेशानी वाली बात ही कोई नहीं। 10 लाख के सामने आ गए मेरे मौला, 160 बंदे खुद मुसद्दस है, मैं उसमें से गिन के 3 आपको सुना रहा हूँ, इसके बाद मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। राजी रहिएगा, मेरे मौला आपका कदम कदम चल के आए, कबूल फरमाए। लेकिन प्लीज, आखिर मैं आपका मेहमान हूँ, मैं पाकिस्तान के किस कोने से उठ के आया, खुदा की कसम सुबह की पूरी फ्लाइट मेहरबानी जाऊंगा कि एक बात की थी, जिक्र मिंबर पे रख के और कराची में बात आए हो गई, इसे जाया न करना। 15 सेकंड की बात सुनो, उसूल बता रहा हूँ। जब भी कोई बड़ा, मजमून ज़हन में रखना, मौला अब्बास पढ़ रहा हूँ, जब भी कोई बड़ा किसी भी छोटे को बुलाए, छोटे की जुबान से पहला लफ्ज निकलता है जी। क्या निकलता है? छोटे की जुबान से क्या निकलता है? खुदा गवाह करके कह रहा हूं मेरे जवान भाइयों, वो अलम जहां जहां पे भी पूरी इंचोली में लगे हुए हैं, ये अलम हजरत अब्बास नहीं, इसे मौला गाजी का अभी पहरा समझना। मेरे मौला गाजी देख रहे हैं, मैं मिसरा पढ़ रहा हूं। छोटे की नाज़म शुरू हो गई है। छोटे की जुबान से सबसे पहला लफ्ज बड़े के बुलाने के बाद निकलता है जी। ख़याम हुसैनी से अलमों वाला बादशाह पंजतन का गरूर बन के जमीन और आसमान महवदीप थे। कोई अकलौता शहजादा जा रहा था, आकर एक टीले पे खड़ा हुआ, अपने घोड़े को खड़ा किया। अली के लाल ने चाहा कि मैं 10 लाख से कुछ कलाम करूं, लेकिन फासला बहुत ज्यादा था, अभी मेरे मौला आगे नहीं गए, अभी उसी टीले पे खड़े थे। बड़ा बुलाए, छोटा कहता है जी। या बंदे को छुट्टी है, अभी बंदों में से नीचे बैठ जाए। अगर मेरी नजर में आ गया मेरे मौला अब्बास का नौकर, उसने हाथ ना उठाया तो मैं मौला की बारगाह में उसके हाथों का गिला करूंगा। छोटा सबसे पहले कहता है जी। मौला अब्बास बाहर है, हुआ क्या? आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। जल्दी 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 मिलके बोले हैदर हैदर। आसमां तक, जल्दी मेरे भाइयों, आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा, मलकुल मौत ने घबरा के कहा। लहजाए गैज में बोला ये हुसैनी जर्रार, लहजाए गैज में बोला ये हुसैनी जर्रार। मलकुल मौत सुन रहे हो जो तराई पे है शोरे अशरार। मलकुल मौत ने कहा जी बादशाह सुन रहा हूं। मैं जोर लगाता हूं, फिर मैं नीचे आ जाता हूं।
आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं ऐसा क्यों करता हूं, आपसे ज्यादा मैं थका हूं, दिन रात के सफर है, लेकिन याद रखिएगा करंट होता है। मैं अक्सर मेंबरों पे कहता हूँ, ये जो करंट होता है ना, ये करंट होता है। इसे हीटर में लगाओगे तो गर्मी निकलेगी, इसे एसी में लगाओगे तो सर्दी निकलेगी। करंट एक होता है, सामने से ज़र्फ बदल जाता है। और अली की विलायत में भी करंट होता है। हलाली सुने तो दिल ठंडा हो जाता है, हरामी सुने तो दिल जल के राख हो जाता है। मैं मौला अब्बास का नहर पे जाना बता रहा हूँ। और मेरे जवान भाइयों, जवानियां नसीब हो तुम्हें, लेकिन खुदा की कसम मैंने बड़े बड़े मजमून पढ़े हैं, मैंने ऐसा एटीट्यूड नहीं देखा। खुदा की कसम मैंने ऐसा प्रोटोकॉल नहीं देखा। मौला का वास्ता, मेरे मौला अब्बास फरमा रहे हैं, सुन रहे हो जो तराई पे है शोरे अशरार, मलकुल मौत ने कहा सुनो मेरे मौला गाजी पिपरे, और फिर शेर की तरह गरजे, गरज के फरमाते हैं मलकुल मौत दुश्मनी में ये कई रोज से बल खाते हैं, जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम आते हैं। बैठा है कोई मुश्किल बात का बदल करने वाला? जाओ, 2 शेर में मजीद पढ़ूंगा, उन 2 शेरों के बाद मैं मिंबर पे नहीं हूं। मौला का वास्ता मेरा सफर बर्बाद न करना, जाओ दरिया पे खबर कर दो। अब ये वक्त नहीं कि कोई जश्न वाली खिताबत की जाए, हम आते हैं, हम आते हैं। फिर हुआ क्या, ये खबर सुन के जब खौफ का बादल छाया, हर सितमगर का जिगर कांप उठा, थर आया, बदहवासी में बिने सादे नहीं चिल्लाया, अरे नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया, नहर से भाग चलो, नहर से भाग चलो। दरमियान वाले हाथों की मछलियों को जगाओ, अरे नहर से भाग चलो, नहर से भाग चलो। जमील बंदा बता के हमारा फेर के जो हाथ नहीं उठाता, नहर से भाग चलो। इमरान साहब गालिब आपने मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े हैं। फारसी जुबान का एक लफ्ज है रूबा, रूबा कहते हैं लोमड़ी को, जो डर गया वो रहने दे। फारसी में रूबा लोमड़ी को कहते हैं। मेरे मौला पास आ रही है, बदहवासी में बिने सादे नहीं चिल्लाया, नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। फौज ने कहा क्यों? इब्ने साद ने कहा सीधी सी बात है, हमारा भागना बनता है क्योंकि वो गाजी है, सर कमर हाथ जिगर और गले जाते हैं, शेर आता है तो रूबा चले जाते। मिल गया बोला हैदर, हैदर, शेर आता है, शेर ना 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 नारे का टाइम मैं देता हूं। शेर आता है तो रूबा। अब मुझे एक इशारा करना है, मौला का वास्ता, ये इशारा पूरे पाकिस्तान में जाया हो जाए मुझे दुख नहीं, इस मजमे में अहले जुबान लोगों में जाया हो तो खुदा की कसम मेरा कत्ल है। शेर आता है तो रूबाहा, इशारा चौथे मिसरे पे, वो इशारा ही पूरा कसीदा है। रूबाहा चले जाते हैं। मेरे मौला अब्बास मैदान में आए, माहौल क्या था? पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो, पहरेदारों की सदा थी, पहरेदारों, दरमियान वाला मजमा, मुझे चौथे मिसरे पे हर हाथ बुलंद चाहिए, ऊपर रखिए। पहरेदारों, पहरेदारों को मेल कैमरा इधर करना है, कोई फायदा नहीं आईफोन 14 का अगर यहां बंदा ना बता सको। पहरेदारों, मुझे देख अब्बास आया, हुआ क्या? पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो, अपने बस में नहीं हरगिज़ ये लड़ाई छोड़ो। अब ये फरियाद, ये नौहा, ये दुहाई छोड़ो, अरे वक्त है भाग निकलने का, कलाई छोड़ो, कलाई, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ नीचे नहीं। मैं 1 मिनट का मेहमान हूं, अब मुझे सुनना, अब सुनना, वक्त है भाग निकलने का। खुदा की कसम मैं मौला अब्बास मैदान में आते दिखाऊं, वक्त है भाग निकलने का, कलाई छोड़ो। फौज ने कहा इब्ने, हाथ ऊपर करो यार, इब्ने साद कहां भाग रहा है? इब्ने साद ने कहा सामने गाजी है, इसे हल्का न लेना, गैज में आके जो तलवार चला देता है ये परिंदों की तरह सर को उड़ा देता, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह। आखिरी 6 मिसरे, आखिरी 6 लाइनें, उस छुरी की धार तेज कीजिए जिस नचकेक पे चलना है, मुक्की ने मेरी नौकरी, गैज में आके जो तलवार चला देता है ये परिंदों की तरह सर को। आखिरी 6 मिसरे जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आपको 12-13 शबान में सलाम करेंगे। मेरे मौला अब्बास आए मैदान में,
10 लाख की आंख में आंख डाली। अली के लाल ने चाहा कि मैं कुछ कलाम करूं। अली का लाल अपने घोड़े की जीन पे खड़ा हो गया। अपने घोड़े की जीन पे खड़े होकर यमीन से यसार तक निगाह दौड़ाई। निगाह दौड़ाने की देर थी, 9-10 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा हुई। अली के लाल ने तलवार नहीं चलाई, एक जुमला कह के खुदा की कसम मेरे मौला जंग जीत के अपने साथ ले गए बड़े आराम से। खतीब मिंबर सलूनी का बेटा है ना, जानता है बात कैसे करनी है। घोड़े की जीन पे खड़े होके ऐसे पेशानी पे हाथ रख के फरमाते हैं, शामियों तुम तो ये बता नहीं सकते कि तुम कौन हो। अरे तुम तो ये, कितना गहरा जुमला था। मुझे पूरी तवक्को थी आप दुआओं से नवाजेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, दिल टूटते रहते हैं। तुम तो ये बता नहीं सकते कि तुम कौन हो। मुझसे सुनो, मैं कौन हूं। मेरा नाम अब्बास है, मैं हैदर कर्रार का बेटा हूँ, मैं शेर खुदा का शेर हूँ। किसी खुश फहमी में ना रहना, ये बात याद रखना। तुम 9 लाख हो या 10 लाख, तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए गाजी को फकत जनाजे की नीयत करनी पड़ेगी। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। जुमला अगला कबूल। अरे तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए अब्बास को सिर्फ जनाजे की नीयत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम खुदा का शुक्र अदा करो, गाजी की मजबूरी है, तुम हरामियों का जनाजा ही हराम हो गया। अरे तुम्हारा जरा कराची जागो जागो जागो। पता नहीं 3 शबान फिर किसके नसीब में है, किसके नसीब में नहीं। मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। फरमाया तुम्हारा जनाजा हराम हो गया। फिर अली के शेर ने ढूंढा, पता नहीं अगले साल मैं भी पढ़ूं या ना पढ़ूं, जितना ये भाई होने के मेरे पे हक दिलाते हैं। फिर अली के लाल ने सफों में शेमर को ढूंढा। फरमाया शेमर छुप नहीं, आगे आ। वो आगे आया, उसकी आंख में आंख डाली। खुदा की कसम अली का शेर बिफरा। मेरे मौला जलाल में आके फरमाते, शेमर बुज़दिल सिपाहे जौर मंगा और मंगा। शेमर बुज़दिल, मैं बता नहीं सकता मुझे कितने मैसेजेस इंस्टाग्राम पे और स्नैपचैट पे आए हैं कि सिर्फ ये नज्म पढ़नी है। इस नज्म और हासिल नज्म से, अरे शिमरे बुज़दिल सिपाहे जौर मंगा और मंगा, देर किस बात की फिलफौर मंगा और मंगा। ओए अपने अंजाम पे कर गौर, मंगा और मंगा। अब मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा। अरे मुझसे लड़ना है मजमा सारा ही खड़ा है। मैंने क्या कहूं कि ये पांव पे खड़े हो। मैं मिसरा पढ़ रहा हूं, ये आसमान खुदा की कसम झूमता हुआ दिखाई देगा। फौज और मंगा। शिमर ने हाथ बांध के कहा, गाजी ये 10 लाख का लश्कर है, क्या ये कम है जो तू कह रहा है और मंगा। और खुदा की कसम अली का शेर बिफरा। फरमाते नाम गाजी है, 10 लाख न सुना, ये बात याद रखी। और इसलिए मंगा क्योंकि अशहले सीरतो होशियार